Okay, so in vectors and 3D topics, we will learn about vectors, addition, multiplication, subtraction of vectors. Then the section formula for dividing the vectors in a particular area. We will learn about direction cosines, the equations of lines using vector notation, and a lot other things. And in 3D, we will learn about various uh, numericals like finding the shortest distance between two lines, finding the distance between two lines and distance between two planes, the equation of a normal, and all such things. Okay, so let us start. Vector is a quantity which has both magnitude and direction. Okay, so it can be represented by an arrow where the length of the arrow represents the magnitude of the vector and the direction of the arrow represents the direction of the vector. If the vector is short in arrow, that means it has a smaller magnitude. And two vectors pointing along the same direction, they are known as parallel vectors. Okay. तो अब कुछ वेक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप के. फॉर एग्जांपल, अ जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच हैज अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड इट हैज indeterminate direction. Then a unit vector is a vector which has a unit magnitude and its direction is the same as the magnitude of the original vector. So if we have a vector A, then to find the unit vector, we divide the vector A with the magnitude of the vector. So this is the unit vector of A and its direction is the same as the original vector, but its magnitude is 1. Next, we study equal vectors. So two vectors are equal if both their magnitudes and directions are equal, and two vectors are collinear if they are parallel. So collinear vectors are the same as parallel vectors. So here collinear does not mean that the tip of the arrows should lie along the same line. These three vectors are collinear, but these vectors are also collinear. So collinearity in vectors mean that they should just be parallel. Okay, next are coplanar vectors. So if all the vectors are lying along the same plane, then they are known as coplanar vectors. For example, these three vectors. And if we add a vector which is coming out of this plane like this, then it is not a coplanar vector. Then any two vectors that you take, any two random vectors will always be coplanar, because there will always be a plane which will be passing through the plane of the two vectors. But if you have three vectors, then they may or may not be coplanar. Okay, so we will see that if the vector triple product or the scalar product of three vectors is 0, then that means the three vectors are coplanar. But if the triple product is non-zero, that means one of the vectors is coming out of the plane formed by the other two vectors. Okay, then vector addition we have already seen in a lot of previous classes. So you place the tip of the second vector at the top of the you place the tip of the first vector with the tail of the second vector, and then you join the tip of the tail of the first with the tip of the second. You get the sum of the two vectors. If you need to subtract the two vectors, then you need to take the second vector in the opposite direction. So if this is a vector, this is minus b vector, and this will be the subtraction of two vectors. Now coming to the multiplication of vectors. For multiplication, there are two different methods. One is the dot product. So you take a vector dot b vector. This gives you a scalar quantity which has a magnitude of a vector magnitude times b vector's magnitude times cos of theta between them. And the other way of multiplying two vectors is taking their cross product. So here you will get a magnitude a b sine theta, and you will also get a direction. The direction will be given by the right hand rule. So if you curl your fingers from A to B vector, then your thumb will point along the direction of the cross product of two vectors. Okay, ये तो सब आसान था. Now we come to the next important thing, which is the section formula. तो इसका हमने देखा था पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला में देखते हैं. सपोज हमारे पास ये ओरिजिन है वेक्टर्स का. We have one vector r1 which is from the origin till the tip of the r1 coordinates, and we have another vector r2 which is again from the origin till the other coordinate. Now we need to divide this r1 and r2 vector connecting line in a ratio m is to n.
So we need to find a vector which divides r1 vector and r2 vector in the ratio m is to n. So basically we need to find this r vector. The coordinates of this r vector are given by n r1 vector plus m r2 vector divided by n plus m. ठीक है. अब अगर मिड पॉइंट निकालना है देन m एंड n दोनों 1 है तो मिड पॉइंट के वेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2. ओके. नेक्स्ट आता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. तो मान लो हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन है. कोई भी वेक्टर अगर हम लेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इट विल हैव सम x component, some y component and some z component. So let us say the vector is like this. So direction cosines are basically unit vectors of r vectors projection along the x, y and z axis respectively. तो सपोज करो इस r वेक्टर को हम आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप लिखते हैं. देन अगर हम आर एक्स आर वाई और आर जेड को मैग्नीट्यूड ऑफ आर से डिवाइड करें then we will get the unit vectors of r vector along each of the three axes. Those unit vectors or those components are known as direction cosines. So अगर हम देखें r x upon r, so basically the projection of r vector along the x axis divided by r vector's magnitude, this will be the first direction cosine or cos alpha. Similarly, the y direction cosine will be given by ry over r, which will be cos of beta. And the z direction cosine will be given by rz upon r, which is cos of gamma. अब इनकी डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी होती है दैट अगर इनको स्क्वायर करके ऐड करें यू विल गेट 1. सो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines which represent that if you take a projection of the original vector along x, y, z axis respectively, then what will be the cos of theta formed by the projection vector and the original vector. ओके. अब हम देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. सो हमारे पास कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं. ए वेक्टर, एक पॉइंट दे रखा है ए जिसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा पॉइंट दे रखा है बी जिसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है वेक्टर के टर्म्स में विच इज पासिंग थ्रू ए एंड बी. सो इस लाइन की हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी है. तो we will say that suppose we are starting from the a vector, then any vector on this line will be given by a vector plus t times b vector minus a vector. तो ये जो हमारी स्लोप ऑफ द इक्वेशन थी उसको हम किसी वेरिएबल t से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल गिव any general coordinate on this line r. So for example, if this is the coordinate, this r vector can be written for some value of t. Any point on this line can be written in this format where you will have some specific value of t. If t is equal to 0, then the vector will represent the point A. And if t is equal to 1, the vector will represent the point B. For all other values of t, the vector will lie on this red line. So we can say the equation of the red line is given by a plus t times b minus a, where t is a parameter. ठीक है. अब हम देखते हैं डायरेक्शन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगर हमारे पास एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे. डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा. तो इससे हमारा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आ जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b.
सो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स I plus j minus k cap and I minus j cap। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब cos ऑफ थीटा इज जीरो एंड थीटा इज 90 डिग्रीज। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज यूनिट वेक्टर अलोंग अ प्रोजेक्शन। तो अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है, हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किसी बी वेक्टर के अलोंग। यानी कि हमें ये वाला वेक्टर फाइंड करना है जिसकी टेल यहाँ पे हो और जिसकी टिप यहाँ पे हो। दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। तो इसको निकालने के लिए we will say the vector component of a vector along B is given by a vector dot b vector divided by b squared times b vector। और इसको हम एक दूसरे इजी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, a vector dot b hat। तो ओरिजिनल वेक्टर का आप जिस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट ले लोगे तो वी विल गेट द प्रोजेक्शन वेक्टर। एंड अगर हमें प्रोजेक्शन वेक्टर की जगह ये वाला वेक्टर निकालना होता विच इज perpendicular to the projection vector, then we will subtract the projection vector from the original vector. So this vector will be given by a vector minus a vector dot b hat। ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। Let us say we have a vector I cap plus j cap। We want to find the projection of this vector along I cap plus k cap। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए we will say let this vector be a vector, let this vector be b vector। So the projection of a vector along b vector will be given by a vector dot, इसका मैग्नीट्यूड will be 1/√2। बट हमें निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे। So magnitude है 1/√2, therefore projection vector is given by 1/√2 times unit vector, और unit vector b के along है I cap plus k cap by √2। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आ गया हमारा I cap plus k cap by 2। यानी कि b वेक्टर का हाफ। ठीक है। तो जो हमने ऊपर देखा था a डॉट बी हैट, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था। इसके बाद हम बी हैट से और भी आगे लगाएंगे जो यूनिट वेक्टर है along बी हैट। ओके। और अगर ये वाला प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो, देन वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर वाला वेक्टर। ओके। ऐसे ही आपके पास कोई भी वेक्टर दिया हो आप उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसी को यूज करते हुए अगर ए वेक्टर है हमारे पास, वी कैन से ए वेक्टर इज इक्वल टू सम कंपोनेंट अलोंग आई कैप प्लस सम कंपोनेंट अलोंग जे कैप प्लस सम कंपोनेंट अलोंग के कैप। आई कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट आई हैट एक्स के अलोंग प्रोजेक्शन। जे कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए वेक्टर डॉट जे कैप, और के वेक्टर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए वेक्टर डॉट के कैप। तो किसी भी वेक्टर्स को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हमें दिया हो ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i cap minus j cap plus 2k cap, we have to find the
vector product of these two vectors, so a cross b vector. उसके लिए we will write a determinant जिसका पहला रो will be given by I cap, j cap, k cap. दूसरा रो will be given by the a vector, so 2, 3 and -4, and third row will be given by b vector, 1, -1 and 2. तो अगर I cap वाला टर्म्स लें, we will get 3 times 2 minus -1 times 4, which is equal to 2. अगर j cap वाला कंपोनेंट लें तो कितना आएगा, -4 times -1 minus 2 times 2, which is equal to -8. और k cap वाला टर्म लें तो कितना आएगा, -2 -3, which is -5. ऐसे ही किसी भी दो वेक्टर्स का आप वेक्टर प्रोडक्ट ले सकते हो बाय राइटिंग द डिटर्मिनेंट. सो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 2i कैप -8j कैप प्लस -5k कैप. और क्रॉस प्रोडक्ट की राइट हैंड रूल वाली डायरेक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है. तो अगर हम अपनी फिंगर्स ए वेक्टर से बी वेक्टर के लॉन्ग कर्ल करें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स. तो आप देख सकते हो अगर हम एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सी वेक्टर लें, देन ए वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. तो इसको हम चेक करते हैं. लेट अस टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर. तो ये भी जीरो आना चाहिए, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये भी जीरो आना चाहिए, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. तो चेक करो आ रहा है क्या जीरो. अब क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है. अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लोगे, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल गिव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी. ठीक है. तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसके पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, this area, this will be given by the magnitude of c vector, which is equal to square root of 2 square plus 8 square plus 5 square. ठीक है. तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो, उसके बेस के वेक्टर्स लो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका एरिया निकाल लो, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू विल बी जस्ट इक्वल टू a टाइम्स b टाइम्स sin थीटा, विच इज आल्सो द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. ओके, नेक्स्ट आता है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू रैंडम लाइंस. तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, मान लो एक ऐसे जा रही है और दूसरी हमारी ऐसे जा रही है. ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है. अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही हो जाएगा. अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन पर एक वेक्टर लेंगे, लेट्स कॉल इट ए वेक्टर. दूसरी लाइन पर भी एक वेक्टर लेंगे, इसको हम बोलेंगे बी वेक्टर. अब इन दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इस क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग लाई करेगा. ठीक है. तो आप इसे ऐसे विजुअलाइज कर लेंगे, ये कि इस जगह पर होगा, और ये डायरेक्शन विल बी गिवन बाय ए क्रॉस बी वेक्टर. तो हमें हमें डायरेक्शन पता चल गया जिसके अलोंग हमें डिस्टेंस निकालना है. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना काफ़ी आसान है. उसके लिए आप कोई भी दो पॉइंट्स लो और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग प्रोजेक्शन ले लो. तो लेट्स से ये वाला पॉइंट एल था, ये वाला पॉइंट एम था. इस एल एम का आप ए क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन ले लो, दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी. तो एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर होगा. मान लो वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2x plus y is equal to 5 and
y प्लस z इज इक्वल टू 3। इन दोनों लाइंस के बीच में ये तो प्लेन्स हो गए। एक सेकेंड, इनको वेक्टर इक्वेशन में लिखते हैं। सो एक लाइन है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस टी टाइम्स जे कैप माइनस के कैप, और दूसरी लाइन है r2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप या 3j कैप माइनस टी टाइम्स आई कैप। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हैं और दोनों का पैरामीटर टी है। इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इन दोनों लाइंस को रैंडमली ड्रॉ कर देंगे, या ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। पहले इन दोनों लाइंस पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेंगे। तो r1 पे एक पॉइंट है हमारा 2i कैप, और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, t को 1 मान लो, तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और दूसरी लाइन पर हमारे दो पॉइंट्स हो जाएंगे, एक होगा 3j कैप जब t 0 है, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3j कैप माइनस आई कैप। तो जो lm वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा j कैप माइनस के कैप, बेसिकली m के कोऑर्डिनेट्स माइनस l के कोऑर्डिनेट्स। और जो पी क्यू वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा q के कोऑर्डिनेट्स माइनस p के कोऑर्डिनेट्स, सो माइनस आई कैप। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल लाई अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, सो अलोंग lm वेक्टर क्रॉस pq वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? j कैप क्रॉस माइनस a कैप इज k कैप, एंड k कैप क्रॉस i कैप इज j कैप। सो क्रॉस प्रोडक्ट आता है k कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें इस डायरेक्शन के अलोंग ओरिजिनल लाइन के एक पॉइंट, सो लेट्स से पॉइंट L और पॉइंट P, यानी कि LP लाइन का प्रोजेक्शन लेना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो LP वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप माइनस 3j कैप, and the shortest distance will be given by LP vector dot unit vector of LM vector cross PQ vector. Okay, so this will be equal to 2i cap minus 3j cap dot k cap plus j cap by root 2. तो इसका आंसर हो जाएगा -3/√2, बट क्योंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो आंसर विल बी +3/√2. Hence the shortest distance between these two lines is given by 3/√2. एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। पहले पहली लाइन के कोई दो पॉइंट्स ले लिए, दूसरी लाइन के कोई दो पॉइंट्स ले लिए। सो पहली लाइन के दो पॉइंट्स ले लिए L एंड M, दूसरी लाइन के दो पॉइंट्स ले लिए P एंड Q। तो हमारे पास ये LM वेक्टर आ गया और PQ वेक्टर आ गया। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो LM क्रॉस PQ के अलोंग लाई करेगा, तो इस डायरेक्शन में लाएगा इस डायरेक्शन में लाई करेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट वाले डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन लेना है किसी LP का, या फिर MQ का भी ले सकते थे, MP का भी ले सकते थे, LQ का भी ले सकते थे। कोई भी एक पॉइंट पहली लाइन से और कोई भी एक पॉइंट दूसरी लाइन से कनेक्ट कर दो और उसका प्रोजेक्शन ले लो अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल गिव यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कोई भी पॉइंट लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने सिर्फ दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया था, डॉट या फिर क्रॉस, पर अब हम तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है।
तो इनका हम प्रोडक्ट दो तरीके से ही ले सकते हैं, या तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर दें, या तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले केस में यू विल गेट अ स्केलर आंसर और दूसरे केस में यू विल गेट वेक्टर आंसर। पहला वाला प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दूसरा वाला प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो पहला वाला है। तो इस पे क्या करते हैं, पहले आप बी और सी को क्रॉस कर देते हैं, फिर उसका ए से डॉट लेते हैं। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक पैरेललोपिपेड के बेस की वेक्टर्स की साइड्स बना रहे हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड। So let's say this is A vector, this is B vector, and this is C vector. Then इन तीनों वेक्टर से जो पैरेललोपिपेड बनेगा, पैरेललोपिपेड पैरेललोग्राम की तरह होते हैं, बस 3 डायमेंशंस में होते हैं। इसका वॉल्यूम विल बी गिवन बाय दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये साइक्लिक होता है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू b vector dot c vector cross a vector, and this is also equal to c vector dot a vector cross b vector. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a vector b vector c vector is equal to b vector c vector a vector is equal to c vector a vector b vector. ठीक है, ये प्रॉपर्टी साइक्लिसिटी की होती है। अगर साइकिल ब्रेक होता है तो वी गेट अ नेगेटिव साइन। a vector b vector c vector is equal to negative of a vector c vector b vector। ओके, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो आप याद कर सकते हो या प्रूफ भी कर सकते हो। अगर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के तीनों एलिमेंट्स डिफरेंसेस हैं दो वेक्टर के, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। ओके, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं प्रूफ। सो दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट will be given by a vector minus b vector dot b vector minus c vector क्रॉस c vector minus a vector। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसमें हमारे 4 टर्म्स आएंगे और फिर इसको 2 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 8 टर्म्स आएंगे। उन 8 टर्म्स में से दो दो के पेयर बन के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर 0 आएगा। अच्छा, अब इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर माइनस की जगह हमारा प्लस था, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रूफ वैसे ही होगा, अब इसको एक्सपैंड करोगे फिर 8 टर्म्स आएंगे, 8 में से 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बस ये वाला टर्म बचेगा जो राइट हैंड साइड पर है। तो अगर सब्ट्रैक्शन है तो फाइनल आंसर विल बी 0, अगर एडिशन है तो फाइनल आंसर विल बी 2 टाइम्स ABC। ओके, अब हम पढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जैसे कि नाम बता रहे हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। So if we have a vector, b vector and c vector, then a vector cross b vector cross c vector will be our vector triple product।
अब इसमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसको साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी इसमें नहीं होता। देयरफॉर दिस वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होते, इसमें साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी नहीं होता। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि इसका फाइनल आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है, हम इसका डायरेक्शन देखते हैं, कौन सा डायरेक्शन में ये वेक्टर पॉइंट करेगा। तो लेट्स से बी वेक्टर ऐसे है, सी वेक्टर ऐसे है, तो बी क्रॉस सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा और ऊपर की तरफ होगा। तो बी क्रॉस सी वेक्टर कुछ ऐसे होगा। अब हम ए वेक्टर का बी क्रॉस सी के साथ क्रॉस ले रहे हैं, तो ए वेक्टर चाहे कहीं भी हो, इसी प्लेन पे कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो फाइनल आंसर होगा वो बी क्रॉस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो जो हम ये वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्योंकि इसमें एक वेक्टर बी क्रॉस सी है जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये फाइनल वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब बी क्रॉस सी ऑलरेडी बी और सी के परपेंडिकुलर था, तो बी क्रॉस सी का वापस परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसका मतलब ये बी और सी वाले प्लेन में लाया करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो एक कंपोनेंट हमारा बी वेक्टर के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट हमारा सी वेक्टर के अलोंग आएगा। अब बस हमें ये कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। जब कंपोनेंट्स फाइंड हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए आप इसको ए और बी लिख सकते हैं और फिर डॉट और क्रॉस करके यू कैन सॉल्व। तो आंसर आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर का कोएफिशिएंट है वो होता है ए और सी का डॉट, और जो सी वेक्टर का कोएफिशिएंट है वो होता है माइनस ए और बी का डॉट। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है। अब अगर हम ए और बी का पहले क्रॉस करा देंगे और फिर सी से क्रॉस कराएंगे, तो इसमें जो फाइनल वेक्टर आएगा वो ए और बी के अलोंग होगा। तो दिस विल नॉट बी द सेम एज द अबव वेक्टर। इसमें कुछ कोएफिशिएंट ए वेक्टर का आएगा और कुछ कोएफिशिएंट बी वेक्टर का आएगा। ए वेक्टर का कोएफिशिएंट आता है इसमें माइनस, ओके पहले हम बी वेक्टर का लिख देते हैं। बी वेक्टर का कोएफिशिएंट इसमें आता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और सी ए वेक्टर का कंपोनेंट आता है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो जब ब्रैकेट में जो वाली चीज आ रही है उसको हम पहले क्रॉस करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ब्रैकेट में जो दो वेक्टर्स थे उसके कंपोनेंट्स आएंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी है, इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। एंड ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। तो हमारे ये तीनों वेक्टर्स हैं, तो इसके दोनों प्रोडक्ट्स निकालो, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, कितना आएगा। ओके देखते हैं। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट आएगा ए डॉट सी, एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 1। सो ये जो पहला वाला टर्म है ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर, दिस विल कम आउट टू बी 1 जे कैप।
अब दूसरे वाले में नेगेटिव ए डॉट बी इज -1 और सी वेक्टर इज जे माइनस के, सो दिस विल बी -1 टाइम्स जे वेक्टर माइनस के कैप। सो फाइनल आ गया के कैप। यस करेक्ट, वेरी गुड। तो दूसरे वाले का पहला टर्म आएगा ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर। ए डॉट सी है हमारा 1, सो अगेन 1 जे कैप, और दूसरा टर्म आएगा माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर, सो बी डॉट सी है 1, सो माइनस ए कैप, सो माइनस आई कैप माइनस जे कैप विच इज माइनस आई कैप। ओके, तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, अब हम 3D ज्योमेट्री देखते हैं। 3D ज्योमेट्री में थोड़े से ट्रिकी चीजें हैं। तो पहला आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दो पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस एक्स टू स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2। ओके, दूसरी चीज इसमें दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला आता है, वो सेम ही हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। तो लेट अस से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है ए बी और सी, और हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन है एल एक्स प्लस, एक सेकेंड, सपोज करो हमारे पास एक 3D में एक प्लेन दिया हुआ है। इस प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो जब इस प्लेन पर कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस विल बी प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमारे एल एम एंड एन है, तो वी कैन से एल बाय ए विल बी इक्वल टू एम बाय बी विल बी इक्वल टू जेड बाय सी। ये सी जेड प्लस इज इक्वल टू डी था। तो अगर आपको किसी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस हम ऐसे निकाल लेंगे। अब क्योंकि एल एम एन एन तो नॉर्मलाइज्ड होते हैं, सो वी कैन से दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो एल वाला डायरेक्शन को साइन है दैट विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच विल बी कॉस ऑफ अल्फा। जो दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन है m दैट विल बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर which will be cos beta, and similarly n will be equal to c upon square root of a square plus b square plus c square। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी, एल एम एंड एन नॉर्मलाइज्ड है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज विल बी इक्वल टू 1। पर जो ए बी सी है हमारे वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं, लेट से L1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और M1। एक लाइन है L जिसके डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 M1। दूसरी लाइन M है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आर L2 M2 एंड L2। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो कैसे निकालेंगे?
तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए दोनों लाइन के, इसका मतलब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का, dot product will give you the cos of theta, where theta is the angle between the two lines. So cos of theta will be equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 divided by the magnitudes. और मैग्नीट्यूड होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ये नीचे वाले डिनोमिनेटर तो 1 है क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस आर नॉर्मलाइज्ड, सो नीचे वाला चीज हम हटा देंगे। Therefore cos theta will be equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, उससे हमारा थीटा निकल आएगा। तो अगर L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 0 है, इसका मतलब एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 90 डिग्रीज। अगर L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 1 है, इसका मतलब द टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर L1 इज इक्वल टू L2 है, M1 इज इक्वल टू M2 है, N1 इज इक्वल टू N2 है, इसका मतलब ये बन जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर विच इज 1। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है, इसका मतलब द टू लाइंस आर पैरेलल और द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 0। पर अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 है, इसका मतलब द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब क्या है, हमारे पास तीन लाइंस हैं L, M और N। L के डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 L2 L1 M1 and N1। M के डायरेक्शन कोसाइंस आर L2 M2 and N2 और N के डायरेक्शन कोसाइंस आर L3 M3 and N3। आपको चेक करना है वेदर द थ्री लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट। तो कैसे करोगे? करेक्ट, अगर STP 0 होगा, इसका मतलब तीनों लाइंस हमारी कोप्लेनर है। तो STP के लिए आप ये डिटर्मिनेंट भी देख सकते हो, L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 का। अगर STP 0 होगा तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 होगा एंड द थ्री लाइंस विल बी कोप्लेनर। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब द थ्री लाइंस आर ऑन डिफरेंट प्लेन्स। अगर हमारा जो प्लेन है उसके x, y और z एक्सेस पे इंटरसेप्ट्स दे रखे, तो लेटर से हमारा प्लेन कुछ इस टाइप का है। तो इसका x एक्सेस पर इंटरसेप्ट है a, 0, 0, सो x इंटरसेप्ट इज a। y एक्सेस पर इंटरसेप्ट इसका b है, सो ये वाला पॉइंट इज 0, b, 0 और z एक्सेस पर इंटरसेप्ट इसका c है, सो ये वाला पॉइंट है 0, 0, c। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए we have a formula which is okay, तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? It will be x by a plus y by b plus z by c is equal to 0, is equal to 1, where a, b and c are the intercepts on the three axes respectively। तो अगर तीनों का सेम इंटरसेप्ट है यानी कि 1 1 1, तो इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये काफी काम आता है। और अगर इस प्लेन पे हमें नॉर्मल लाइन लेना है, तो नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? नॉर्मल लाइन के हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y and z। सो नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस विल बी 1 by a, 1 by b and 1 by c रिस्पेक्टिवली। इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करने के लिए तीनों के सम ऑफ स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है, हमें पता है कि कोई प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी। तो हमें पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और z1। अब हमें क्या करना है, we have to find the equation of a plane which is passing through the point x1 y1 z1 and the direction ratios of the normal या direction cosines of the normal are a b and c। ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस कोएफिशिएंट होते हैं। तो वी विल से a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 plus c times z minus z1 will be equal to 0. This will be the equation of the plane which is passing through the point P and whose direction cosines of normal are a, b and c. So let us take a question. Find the equation of a plane which passes through the point 1, comma, minus 1, comma, 0 and the direction cosines of whose normal are 1 by root 5, comma 0, comma minus 2 by root 5। एक प्लेन है which passes through the point P 1, comma minus 1, comma 0 and the direction cosines of normal are given to you. You have to find the equation of the plane. तो equation of the plane जैसा कि हमने पढ़ा है will be given by 1 by root 5 times x minus 1 plus 0 times y plus 1 and minus 2 by root 5 times z is equal to 0। तो ये वाला टर्म तो उड़ जाएगा, रूट फाइव हम कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x माइनस जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो ये वाला प्लेन 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0 से पास हो रहा है और इसके डायरेक्शन कोसाइंस है 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1 बाई रूट 5। ये 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। तो नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। हमारे पास एक पॉइंट P है x1, y1, z1 और हमारे पास एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। हमें निकालना है इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो जैसे लाइन के लिए निकालते थे वैसे ही करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी गिवन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d divided by square root of a square plus b square plus c square। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें तो 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से 0 होगा बिकॉज जब हम इस पे सब्सटीट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर विल बी 0। तो लेट अस से वी हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3 फ्रॉम द प्लेन 2x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 3। इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा?
perpendicular distance will be mod of 2 times 0 plus 5 times 2 minus 4 times minus 3 plus 3 divided by root 45, which is equal to 25 by root 45. तो ऐसे किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ओके. अब अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं तो उनका डिस्टेंस भी सेम तरीके से निकलेगा. लेट अस से वी हैव प्लेन्स ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0 and ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0. तो इन दोनों प्लेन्स का डिस्टेंस विल बी गिवन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d1 minus d2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस वाली की तरह ही है. ओके. नेक्स्ट आता है एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन. तो अगर हमें एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है और दूसरे प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, उन दोनों प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है. तो जैसे हमने लाइंस के लिए किया था वैसा ही करेंगे. तो कोई पॉइंट ले लेंगे P x y z और उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स शुड बी इक्वल. So the equation of the angle bisector will be given by absolute value of a1x plus b1y plus c1z plus d1 divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1. This will be equal to the perpendicular distance from the other plane. So a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज बाइसेक्टिंग दीज टू प्लेन्स. नेक्स्ट है कि हमारे पास दो प्लेन्स हैं. वी हैव टू चेक द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ दोज टू प्लेन्स. सो एक प्लेन हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 5 और दूसरा प्लेन है हमारे पास माइनस 2x प्लस y minus 4 is equal to 0. We have to check the angle between the normals to these two planes. तो उसके लिए हम क्या करेंगे. तो जो पहला वाला प्लेन है जो P1 है हमारा, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस विल बी गिवन बाय 2, 4, -3. ठीक है. तो इसको हम मानते हैं N1 के डायरेक्शन कोसाइंस. और जो हमारा दूसरा प्लेन है P2 उसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे -2, 1, -0 क्योंकि z का कोएफिशिएंट 0 है. तो अब इन नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस पता है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके वी कैन फाइंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो कॉस थीटा आएगा हमारा 2 टाइम्स -2 प्लस 4 विच इज 0. तो इसका मतलब द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स इज 90 डिग्रीज. ओके. तो इसके साथ हमारा वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री खत्म हो जाता है.